and good afternoon. Thank you for joining us here. I'm Pratibha. Times Now has reported on how Aam Aadmi Party MLA and Waqf Board Chairman Amanatullah Khan gave orders to raise schools in Delhi's Fatehpuri area to make way for a shopping plaza. The school came under the Waqf land, and in an unbridled quest to make money, it was demolished to build 11 shops which were allegedly allotted to the aides of Khan for 35 to 40 lakh rupees each. And Times Now has dug deeper into the alleged irregularities that deprived the children of the school. Sources in the MCD have told Times Now that no permission was sought for the construction of the shopping plaza that came up where the school stood. The civic body says that a probe will be ordered as the construction took place without the MCD's nod. Now, let's also tell you what the rule book says. The Delhi Municipal Corporation laws very clearly state that any person wanting to erect a building or carrying out any construction as specified in the bylaws will have to seek sanction from the Commissioner. But that was never sought by Amanatullah Khan-led Delhi Waqf Board as well. Aishwarya and Rishabh join us live on the broadcast with more details on this. Aishwarya, the charge against Amanatullah Khan is one, favoritism, raising down a school and then leasing it out to those who were close to him. And they've come on camera and said that yes, this is what happened. So this is the kind of proof that has been mounting against Amanatullah Khan. Well, that's right. Trouble mounting for Amanatullah Khan as far as this Waqf land property is concerned, in which the Fatehpuri Primary School used to run, which was shut on the orders of Amanatullah Khan when he was the chairperson of Delhi Waqf Board, and later 11 shops were constructed. Now, when we investigated further, we found out from the MCD that no permission was taken from Delhi Waqf Board to construct these shops in the place of school. Remember, the Delhi Municipal Corporation Act 1957 and Section 332 clearly states that any building in the virtue of Delhi Municipal Corporation which comes directly under them, if any builder, any Waqf Board or any other organization wanted to amend it or rebuild it, they have to seek permission. But there was no letter that was sent out by the Delhi Waqf Board to the Delhi Municipal Corporation, and there was no permission which was granted. That clearly means that these shops were illegally built, and when we tried to ask them that whether action will be taken, they clearly stated that yes, the survey will be conducted, and later if we found, then yes, action will be taken. So it has been very clear from the end of MCD that there was no permission sought for these shops. Now remember, there were 11 shops which were constructed after shutting down the school, and the shops which were allocated to the people were certainly the close aides of Amanatullah Khan. The Delhi Waqf Board took 35 lakh rupees to 40 lakh rupees as security amount, and 15 to 20,000 rent per month goes to Delhi Waqf Board from these people who have been allocated. In fact, let's revisit the accounts of the shopkeepers that you're talking about. Those who expose the deep rot and claim that Amanatullah and his aides minted money while the children who were studying in the schools were left to fend for themselves. Listen in to their account. जनता को बेवकूफ बनाने का पब्लिक स्कूल बोर्ड लगा दिया, 2 साल से बोर्ड लगा दिया। कब की बात है? 2 साल के अंदर सारी बातें, और दुकानें अभी बनी, दुकानें अभी बनी, और ये वक्फ बोर्ड की ही दुकानें अभी। नहीं तो ऐसा जो इन्वेस्टिगेशन में आया कि 3 वो क्या नाम है 35 लाख रुपया तक किराया है उनका। नहीं, 35 लाख रुपये सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी का मालिक ही बन गया ये लोग। और प्राइमरी स्कूल था पहले, उनको तोड़कर फिर दुकान भाई वहाँ सगा भाई यहाँ पर है, और इसका सीधा पैसा दिल्ली वक्फ बोर्ड को जाता है अमानतुल्लाह खान। और ये जो दुकानें इनको दी गई हैं, ये क्या इनके करीबी हैं या फिर ये सब जो है किस तरीके से दी गई है? करीबी समझो। अच्छा, किराया अंदर ही फतेहपुर की अच्छा वक्फ बोर्ड में जाता है? ये वक्फ बोर्ड की जगह है। तो सरकार ने सील करी थी? सील ये जो अभी मौजूदा चेयरमैन है अमानतुल्लाह खान, हाँ, इनके पीरियड में लगी थी। अच्छा,
अच्छा, उनकी पीरियड में भी लगी थी। फिर अमानतुल्लाह खान ने इसको दोबारा से खुलवाया है, दुकानों को नया बनवाया। पहले प्राइमरी स्कूल था ना यहाँ पे, वही तो। दिन ब दिन सामने आ रहा है, दिन ब दिन सामने आ रहा है। तो आपको देखना चाहिए ना कि ये वक्फ जो है वो प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं हो सकती, ना वो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी होती है वो। तो आप ये क्यों कर रहे हैं? आर्टिकल 300 क्या बोलता है कि गारंटीज एवरीवन राइट टू प्रॉपर्टी, ये इसका भी वायलेशन यूपी सरकार कर रही है। और अगर कोई इलीगल तरीके से उसको गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को वक्फ प्रॉपर्टी रजिस्टर कर लिया है तो आप कोर्ट में केस लड़ी ना, जाके आप ट्राइब्यूनल में जाइए, आप जो सेक्शन 83 है वक्फ एक्ट का उसके तहत ट्राइब्यूनल में जाइए। तो इस तरह से ये पूरी चीजें जो हो रही है ये सिर्फ और सिर्फ एक तो वक्फ प्रॉपर्टीज को यूपी सरकार टारगेट कर रही है और दूसरा ये कि आप वक्फ प्रॉपर्टीज को छीनना चाह रहे। तीसरा यह है कि आपका सुन्नी वक्फ बोर्ड है, शिया वक्फ बोर्ड है, अगर वक्फ प्रॉपर्टीज पर कोई एनक्रोच करा है तो आप उनसे बुलाकर पूछिए, वो आपको दे देंगे। क्या वक्फ प्रॉपर्टीज पर सरकार का कब्जा नहीं है तो आप खाली करिए उसको। मगर इस तरह का एक टारगेटेड सर्वे करना ये बिल्कुल सरासर गलत है और हम इसकी मुखालिफत करते हैं। तो ये सिस्टमैटिक टारगेटिंग हो रहा है मुसलमानों का। नहीं, सुनिए, ये सिस्टमैटिक टारगेटिंग हो रहा है मुसलमानों का और यूपी सरकार ये काम कर रही है। जो लोग बोल रहे थे कि ज्ञानवापी हो, बाबरी मस्जिद हो, ज्ञानवापी हो, जो बड़े बड़े ज्ञानी लोग बोल रहे थे गिव एंड टेक कर लो, अब बताओ, क्लैरिफाई करो। बाप जो बोल रहे थे गिव एंड टेक कर लो, अब आप क्लैरिफाई करो इस पर क्या बोलेंगे आप। सुनिए, नहीं, अरे बाबरी मस्जिद के वक्त भी ऐसे बहुत बड़े दानिश्वर लोग थे, आज भी हैं। ज्ञानवापी के वक्त भी अब बोल रहे हैं गिव एंड टेक कर लो। अबे क्या गिव एंड टेक करेंगे बताइए आप। एक प्रॉपर्टी वक्फ रजिस्टर हो चुकी है और अगर नहीं भी है तो वक्फ बाय यूजर है। अगर मैं एक जगह पर नमाज पढ़ रहा हूं, ईदगाह है, कब्रिस्तान है, तो वक्फ बाय यूजर है, वो स्टैच्यू ऑफ लिमिटेशन अप्लाई होता। अब सरकार आकर बोलेगी नहीं ये वक्फ नहीं, हम छीन लेंगे। आप कैसे छीनेंगे? आप वक्फ एक्ट के तहत सेक्शन 83 है, वक्फ ट्राइब्यूनल को जाइए, आपका इंटेंशन ये है वक्फ प्रॉपर्टीज को छीन लेना। और अगर कोई वक्फ प्रॉपर्टीज पर कोई एंक्रोच करा है, कोई काबिज है, तो भाई सुन्नी वक्फ बोर्ड क्या कर रहा है, शिया वक्फ बोर्ड क्या कर रहा है, सरकार उनकी मदद क्यों नहीं कर रही है? और सर्वे आप करा रहे हैं तो हिंदू एंडोमेंट बोर्ड का भी सर्वे कराइए ना, मठों का कराइए। ये एक सिलेक्टिव टारगेटिंग है एक समुदाय की कि इनको बस तंग करते रहो, इनको सुकून से रहने मत दो, और ऊपर से बड़ी बातें करते हैं आप। ये 89 का क्या मतलब है बताइए? 89 का डेट कैसा लेके आ रहा है आप? सर, आप कह रहे हैं कि छीनने वक्फ बोर्ड की जमीनें या प्रॉपर्टी छीनने की बात हो रही है। अभी तो सर्वे हो रहा है सर, छीनने की बात नहीं हो रही। नंबर 1। दूसरा, अगर 89 के तहत 89 के कानून या जो भी है उसके तहत अगर दी गई है प्रॉपर्टी, तो उसका सर्वे में क्या दिक्कत है? सरकार अगर किसी मद के लिए फंड भी जारी करती है तो उसका एडिट कराती है कुछ दिनों बाद कि इसका सही इस्तेमाल हुआ, बेजा इस्तेमाल हुआ, सही इस्तेमाल हुआ, क्या हो। तो सर्वे में क्या दिक्कत है? पहला सवाल क्या था आपका? बोलिए, भूल गया। सर्वे क्यों होना चाहिए? आप कह रहे हैं कि छीनने के लिए सर्वे हो रहा है। हाँ, अभी तो सर्वे एक बात सुनिए, वो जो वक्फ बोर्ड का सीईओ है, वो जो वक्फ बोर्ड का सीईओ है वो कौन है? गवर्नमेंट का आदमी नहीं है वो। इसका मतलब यह है कि उसका रिकॉर्ड नहीं है। 30 साल पहले 1989 में अगर कोई प्रॉपर्टी वक्फ हो चुकी है, आपका मकसद यह है कि इस तरह का सर्वे करा के उन वक्फ प्रॉपर्टीज को छीनने का। अगर उस वक्फ प्रॉपर्टीज पर कोई माफिया कब्जा भी करके बैठा है तो फिर आप वो वक्फ बोर्ड से पूछिए, चाहे शिया बोर्ड हो, सुन्नी बोर्ड हो, कि भाई तुमने क्या किया इसके ऊपर, उनको पुल अप करिए आप। नहीं, उसके लिए सर्वे नहीं हो रहा है। आपने जो बताया मुझे, जो उनका मीडिया का नोट आया, सर्वे आप सबका कराइए ना। मेरा बोलना है कि मदरसों का क्यों सर्वे, सबका सर्वे कराइए। सिर्फ वक्फ बोर्ड का क्यों, हिंदू एंडोमेंट मठ का सबके सर्वे कराइए। क्यों नहीं कराना चाह रहे आप? सुनिए, जो वक्फ बोर्ड में जो जुफैर फारूकी है, कौन सा गवर्नमेंट का आदमी नहीं है? उन्हें यूपी के मिनिस्टर
गॉड की प्रॉपर्टी है, नो वन हैज राइट टू ऑक्यूपाई इट, वो लोग खुद बोल रहे हैं। तो सर आप सर्वे कराने का मकसद क्या है हमको बताइए ना, बोलिए, आप खुद बोलिए, चलिए क्या सर्वे है उसका? सर जो मिस्क्रिएंट्स है, जो ग्रैबर्स है, जिन्होंने प्रॉपर्टी वहां से जब्त कर लिया, फिर इलीगल, फिर 19 नहीं सुनिए, 1989 क्यों बोल रहे हैं आप 19 जाइए ना, पीछे जाइए, 89 क्यों बोल रहे फिर आप? 89 के तहत दी गई हाँ, आप सुनिए, जो दी गई है वो वक्फ हो चुकी है। सुनिए, एक मिनट सुनो, जो दी गई वो तो वक्फ हो चुकी है, रजिस्टर्ड हो गया, गेजेट इशू हो गया उसका, नंबर 1, राइट। अब उसका अगर एंक्रोचमेंट अगर उस पर है तो फिर वो सुन्नी वक्फ बोर्ड और शिया वक्फ बोर्ड क्या कर रहा है? गवर्नमेंट को पावर्स है, उनको बुलाकर पूछिए कि भाई ये आपके पास कितनी प्रॉपर्टीज पे एंक्रोचमेंट हुआ 89 के बाद, लिस्ट दीजिए, आप उनसे लीजिए ना। जब एक वक्फ बोर्ड इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस बॉडी है, आप उसके राइट्स के ऊपर कैसे जाते हैं? आप कैसे राइट छीन सकते हैं उनका? और अगर सरकार अगर ये कह रही है कि नहीं वो वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं है, गवर्नमेंट की है, तो आप सेक्शन 83 वक्फ एक्ट का है, आप जाइए हाई कोर्ट जाइए 226 में। सर आपने सिस्टमेटिक टारगेटिंग की बात की है माइनॉरिटी मुस्लिम समाज की उत्तर प्रदेश में, पहले आपने अपोज किया मदरसा का सर्वे, अब उसके कुछ दिनों बाद मदरसा का सर्वे शुरू हो चुका है, अब ये हो रहा है, तो आपको क्यों लगता है सिस्टमेटिक टारगेटिंग हुई है? ऐसा आपको लगता है? सर्वे तो जानकारी जुटाने के लिए होता है, जानकारी इकट्ठा कर रही है नहीं, चलिए आपकी बात को मान लेते हैं, सर्वे हो रहा है, सर्वे सबका कराइए ना, कौन रोक रहा है सर्वे कराने से? सर्वे आप क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशंस का कराइए, हिंदू एंडोमेंट का, हिंदू मठ के जमीनात का करवाइए, कौन रोक रहा है आपको? और हम आपसे करें कि 89 के बाद जो प्रॉपर्टीज वक्फ में रजिस्टर हो चुकी हैं, जो जहां पर वक्फ के वाकिफ के मंशे के मुताबिक उसका इस्तेमाल हो रहा है, तो आपका इंटेंशन सरकार का है कि वह प्रॉपर्टी छीन ले वक्फ बोर्ड से। आपको लगता है कि इससे और ज्यादा कंट्रोवर्सी शुरू होगी, विवाद होगा? सुनिए, मल्टीपल क्लेम्स आएंगे। मेरा बोलना है कि क्या सुन्नी वक्फ बोर्ड नहीं है, क्या शिया वक्फ बोर्ड नहीं है? आपने उनसे पूछा कि कितने प्रॉपर्टीज पर एंक्रोचमेंट हुआ है? सर यही एक सुनो, आपने उनसे क्यों नहीं पूछा? उसमें सुन्नी वक्फ बोर्ड में तो उत्तर प्रदेश सरकार का आदमी बैठा हुआ है, उनसे पूछा आपने? आप ये सर्वे सबका कराइए, आप क्यों नहीं कराना चाह रहे सबका सर्वे? आखिर क्यों तकलीफ हो रही है आपको? उत्तर प्रदेश सरकार को सबका सर्वे कराइए ना, सब हर समुदाय का जो रिलीजियस प्रॉपर्टीज है सबका करवाइए, आप क्यों नहीं करवाते? आपको मालूम हो जाएगा। सर जब वक्फ बोर्ड एलिगेशंस फेस कर रहा है तो वक्फ बोर्ड में कराएंगे ना सर, क्यों एंडोमेंट पे और क्रिश्चियन मिशनरीज पे करा रहे हैं? वक्फ बोर्ड एलिगेशंस कहां फेस कर रहा? कहीं तमिलनाडु में कहां? देखो, सुनिए, आपके टीवी चैनल का वो एजेंडा हो सकता, वो यूपी का एजेंडा है, नहीं मालूम मेरे को, मगर मैं यहाँ पे आपको ये बोल रहा हूं कि ये छोटा एनआरसी दोबारा है। ये आप वक्फ प्रॉपर्टी को एक एनिमी प्रॉपर्टी की तरह ट्रीट कर रहे हैं आप। 1995 एक्ट क्लियरली बोल रहा, वंस अ वक्फ ऑलवेज अ वक्फ। क्या आप सर्वे करा के उसका लीगल स्टेटस चेंज कर सकते हैं? आप बताइए। नहीं कर सकते ना, नहीं कर सकते। अरे तकलीफ क्या? आप मेरे प्रॉपर्टी का नेचर चेंज नहीं कर सकते। एनआरसी से क्यों कंपेयर? अरे फिर आप ये डेटा जमा कर रहे हैं, आप सब चीजों का, आप मदरसा का डेटा जमा कर लिए, अब आप वक्फ का डेटा जमा कर रहे हैं, आप तो उसी राह पे जा रहे हैं। एनआरसी बैकडोर एनआरसी, ये छोटा एनआरसी है भी। डेप्यूटी सीएम ने खुद कहा है कि मुस्लिम को ये प्रॉपर्टीज नहीं मिले हैं, मोस्टली जो माफिया है उनको ही मिले हैं प्रॉपर्टीज, उसके लिए। देखिए, माफिया हो ना हो, अगर एंक्रोचमेंट है तो सुन्नी वक्फ बोर्ड, शिया वक्फ बोर्ड क्या कर रहा है? सुन्नी वक्फ बोर्ड, शिया वक्फ बोर्ड क्या कर रहा है? सुन्नी वक्फ बोर्ड में जो ऑफिसर है, जो जिम्मेदार है सुन्नी वक्फ बोर्ड का, वो तो यूपी सरकार का आदमी बैठा हुआ है। चलिए, अगर आपको उनको निकालना है ना, कैसे निकालेंगे आप उनको? चलिए मान भी लिया अगर एंक्रोचमेंट हो, कैसे निकालेंगे उनको आप? उनको सेमरी एविक्शन पावर दीजिए, चलिए वक्फ बोर्ड को आप।
एनआरसी से क्यों कंपेयर? बिल्कुल है, डेटा है, बिल्कुल बिल्कुल है, बिल्कुल बिल्कुल ये बिल्कुल है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बिल्कुल है। ये छोटा एनआरसी है, ये कंटिन्यूइंग है ये, क्योंकि आप वक्फ प्रॉपर्टी को एनिमी प्रॉपर्टी ट्रीट कर रहे हैं। अगर किसी 89 के बाद जो प्रॉपर्टीज रजिस्टर हुए हैं वक्फ प्रॉपर्टी, उसमें इंक्रोचमेंट हुआ या माफिया हुआ है, तो आप वक्फ बोर्ड को सेमी एविक्शन पावर दीजिए ना। चलिए अच्छा, सुनिए, समरी एविक्शन पावर्स दे दीजिए। चलिए, कौन रोक रहा है आपको? दीजिए, चलिए। समरी एविक्शन पावर्स दीजिए। आप क्यों नहीं देते उनको? आप नहीं देना चाह रहे उनको? एनआरसी इज अ कंप्लीटली डिफरेंट। नहीं, आप डेटा जमा कर रहे हो। तो एनआरसी क्या है? एनआरसी क्या है? वही है, एनआरसी वही, आप डेटा जमा कर रहे हैं। आप डेटा जमा करके उसका इस्तेमाल करेंगे। क्या सर्वे कराने से कोई लीगल स्टेटस चेंज होता? वक्फ प्रॉपर्टीज का नहीं होता है। और अगर कोई वहां पे इंक्रोचमेंट कराए तो भाई आप उसको निकालने के लिए सुन्नी वक्फ बोर्ड से, शिया वक्फ बोर्ड से क्यों नहीं पूछते? आप उनसे पूछिए, वो एक ऑटोनोमस बॉडी है। आपने क्या किया बताइए आप? सर, समाजवादी पार्टी है, उत्तर प्रदेश में आप विपक्ष में है, वो ऑलमोस्ट लगता है कि इस सर्वे के फेवर में है। वो बोलते हैं कि इंक्रोचमेंट हुआ तो सर्वे होना चाहिए और ऐसा एक्शन होना चाहिए इंक्रोचर। आप यहाँ हैदराबाद में हैं, आपकी पार्टी जाके वहाँ लड़ी, लेकिन मेन जो विपक्ष है वो तो फेवर कर रहा है। अब अरे वो मुझसे पूछ लीजिए ना, वो क्या क्या फेवर करते हैं, क्या नहीं करते, उनको ही मालूम। उनका क्या चल रहा है मेरे को नहीं मालूम। मायावती जी बोल रहे हैं कि विपक्ष जो समाजवादी पार्टी तो साइलेंट वहाँ पे। एक बात सुनिए, बाबरी मस्जिद वक्फ थी, हम खो दिए उसको। एक बात याद रखिए कि ज्ञानवापी भी वक्फ है। मैं आपसे पहले भी कहा था कि 1942 में वक्फ हुआ था ये, 1880 में उसका खसरा पानी का रिकॉर्ड है, दीन मोहम्मद का केस है, और ज्ञानवापी में जो प्रधानमंत्री ने उसका मॉडर्नाइजेशन रिनोवेशन किया, उसमें चेंज ऑफ प्रॉपर्टीज हुई है। अगर किसी वक्फ प्रॉपर्टी पर कोई माफिया इंक्रोच करके बैठा है तो सुन्नी वक्फ बोर्ड क्या कर रहा है, शिया वक्फ बोर्ड क्या कर रहा है? क्या उसमें सरकार के आदमी नहीं है? आपने उनको निकालने के लिए क्या किया बताइए? आप बोलेंगे सर्वे कर रहे, सर्वे आप एक ही समुदाय का क्यों कर रहे हैं? हर प्रॉपर्टीज का सुन्नी वक्फ बोर्ड में, शिया वक्फ बोर्ड में रिकॉर्ड है, वो ले लीजिए, जहां पर लीगल केसेस पेंडिंग है या नहीं है। आप एक्सपेडाइट कराइए उन लोगों को। आपका इंटेंशन वो नहीं है, आपका इंटेंशन ये है कि इन वक्फ प्रॉपर्टीज को ले लिया जाए, और सरकार वक्फ प्रॉपर्टीज को नहीं ले सकती है, उसका एक लीगल प्रोसेस है। वक्फ एक्ट के तहत सेक्शन 83 वक्फ ट्रिब्यूनल को जाना पड़ेगा, या आप हाई कोर्ट को जाइए अंडर 226। कैसा करेंगे? और वक्फ बाय यूजर वक्फ है, लीगल, उसका लीगल स्टेटस चेंज ही नहीं हो सकता। आप सर वक्फ सर्वे का विरोध कर रहे हैं, हिजाब पे अभी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, हिजाब पे भी आपका रुख जो है काफी स्ट्रॉन्ग है, आप फेवर में है हिजाब के। विश्व के अलग अलग देशों में हिजाब को लेकर काफी प्रोटेस्ट हो रहे हैं, खासतौर पर ईरान के। तो आप तो मेरे को क्या, नहीं, मुझे क्या करना है ईरान से? नहीं, मुझे मैं आपके राष्ट्रवाद को क्वेश्चन कर रहा हूं। आपका राष्ट्रवाद इतना कमजोर क्यों हो गया कि भारत की बच्ची हिजाब पहनना चाह रही, आपको ईरान की बच्ची से मोहब्बत क्यों हो गई? मैं सिटीजन हूं या ईरान की भारत की सिटीजन है? अरे कैसी मोहब्बत है तुमको? एक तरफ आप है? अरे आप लोगों को मोहब्बत होनी चाहिए भारत के नागरिकों से, उनके फंडामेंटल राइट से, मगर आपको ईरान की फिक्र है, ईरान की फिक्र है। अम्मा यार, कर्नाटका की बच्ची भारत की नागरिक है,